So I've been trying some new products, some skincare and some makeup, and I want to share with you if those are hits or misses. But before that, if you are stopping here for the first time, hello, this is Diljit, and on this channel we talk everything about makeup and skincare. So if that is your area of interest too, please consider subscribing to my channel, which is Blush by Diljit. Now let's roll the video. Let's start with the makeup first, and the first product I want to talk about are these Love Earth's lipstick. These are gifted to me by the brand itself, and this video, by the way, is not sponsored at all. And if you want to see the swatches of this lipstick, you can check my Instagram, which is Blush by Diljit. I have swatched all of these three lipsticks on there, and the favorite shade of mine, by the way, is this Espresso Martini. This is what I'm wearing today. I have topped it up with the gloss or lip elixir by the My Hues. By the way, this one has been my favorite too, but for now we are talking about the lipsticks. So yeah, Espresso Martini is a proper nude shade. If you are NC40 or above, you might need a brown lip liner to carry this one. Otherwise, it might look, pale or make you look sick. But if you are NC40 and above, you can surely try this Spanish Coffee. It's, a deeper brown, I would say, than the Espresso Martini. It would suit NC40 and above beautifully. This is what it looks like. It's looking maybe, a bit more reddish on the camera, but it has the, perfect balance of reds, browns and pink, and it will look good even without the makeup. And the next shade, I believe so many of us would like it, is the Raspberry Martini. It is a beautiful pinkish shade, I would say. It's like not over the top pink, like not in your face pink, but something that you can carry very easily. This is what it looks like. Again, maybe the camera lights are not picking it up properly, but the shades on the Instagram that I have swatched are, spot on. You can just check it over there. So yeah, that's it with this Love Earth's lipsticks. And the next one, I'm not sure if I have talked about these in my previous videos or not, but these are the holographic eyeliners. These were also sent to me by the NY Bay. Again, this is not sponsored. I'm just sharing because I love them. थोड़ी सी और ब्रांड्स भी हैं जिन्होंने ये आई लाइनर्स निकाले हुए हैं, तो इफ़ यू वांट यू कैन ट्राई मे बी स्विस ब्यूटी, यू कैन ट्राई रेने, जो भी आपको पसंद हो आप वो ट्राई कर सकते हो. बट आई हैव ट्राइड NY Bay एंड आई कैन एश्योर यू, ये आई लाइनर जब आप लगा लेते हो ना, ये कहीं भी स्मज नहीं होने वाले हैं. कुछ स्वेटिंग हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, ये कहीं नहीं जाएगा. इट विल बी देयर इंटैक्ट ऑन योर आईज. द शेड्स आर ब्यूटिफुल. आई हैव 01 विद मी, which has, I think, this blue purple sort of holographic effect here. These are smudge proof, by the way. Again, you can see the swatches on my eyes on my Instagram, and you can also check the shorts I have shared on them as well. The next one probably is the green and pinkish one, and this is what it looks like. These are beautiful. You can use them as eyeliner, or you can use it on your whole lid as well. eyeshadow की तरह भी आप use कर सकते हो. These will look beautiful. अगर आपका कोई भी आई मेकअप करने का ज़्यादा मूड नहीं है, बस ये लगा लो, एक अच्छी सी लिपस्टिक लगा लो, मस्कारा लगा लो, you are sorted. तो वैसे भी I'm liking this one and done आई प्रोडक्ट्स, आई मेकअप प्रोडक्ट्स a lot, तो इसलिए ये भी मुझे बहुत पसंद है. If you are also not into that elaborate eyeshadows look, तो आप ये ट्राई कर सकते हो. आपको फॉर श्योर पसंद आएगा, आई गारंटी यू. ओके, मेकअप के लिए आई थिंक मेरे पास बस ये लिपस्टिक्स थी, आई लाइनर्स था. I just have one more product. It's by NYX. It's Plump Right Back Primer. Now, इसके बारे में मैंने आई थिंक पिछली वीडियोस में भी बात की है, but I still wanted to include this one up because I want to talk about it more. Now, अगर आपने वो एल्फ का या मिल्क का प्राइमर देखा होगा ना, तो जब वो प्राइमर लगाते हैं तो दे शो यू कैसा स्टिक करने से ना वो ग्रिप हो जाता है. ये बात सही है कि उससे मेकअप तो लंबा टिकेगा, बट I don't like that sticky effect on my skin. Sometimes वो मिल्क वाला, स्पेशली जो प्राइमर है, एल्फ वाला मैंने नहीं ट्राई किया है, बट जो मिल्क वाला है, that feels like you have applied gum on your face, और बहुत ज़्यादा स्टिकी फील होता है. लाइक इट्स नॉट वेरी स्टिकी टू टच करने में कंफर्टेबल रहता है, बट फेस पे ही ना एक टाइटनेस फील होती है. बट दिस वन हैज़ बीन वर्किंग नाइसली. फाउंडेशंस इसके ऊपर बहुत अच्छे से बैठती हैं, मेकअप थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है विद दैट, बिकॉज इट हैज़ दिस प्लम्पिंग प्रॉपर्टीज इन इट. तो आप जब लगाते हो ना, आपका फेस ऐसा ड्यूई ग्लोई सा दिखता है. इट्स नॉट मेडिफाइंग प्राइमर,
तो इफ़ यू हैव ऑयली स्किन एंड यू आर लुकिंग फॉर सम मेडिफाइंग प्राइमर, यू कैन स्किप दिस वन. बट अगर आपकी ऑयली स्किन है या फिर यू लाइक योर मेकअप टू लुक ड्यूई एंड ग्लोई एज इफ यू हैव ड्रंक सो मच ऑफ वाटर, तो आप ये ज़रूर ट्राई करना. इसका ना वो चिप वाला इफेक्ट नहीं आता एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट दिस वन. सो या मेकअप के बारे में मुझे ये प्रोडक्ट्स दिखाने थे. अब स्किन केयर की बात करते हैं. ओके, सो स्किन केयर में द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज दिस मॉलिक्यूल 53 पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स 10% सीरम. ना आपको पता होगा मार्केट में आजकल पेप्टाइड्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं. कॉपर पेप्टाइड्स, आर्जिनिन पेप्टाइड्स, बहुत सारे पेप्टाइड्स चल रहे हैं एंड मैनी पीपल आर कंपेयरिंग इट विद दी बोटॉक्स. सो आई ऑल्सो वॉन्टेड टू सी इफ इट इज वर्थ दी हाइप और नॉट. आई ट्राइड दिस मॉलिक्यूल 53 ब्रांड. अब इसके बारे में, इस ब्रांड के बारे में बहुत लोग बात नहीं कर रहे हैं बट इसके क्लेम्स अच्छे थे, सो आई वॉन्टेड टू गिव इट अ ट्राई. It has this arginine peptide 10% which is supposed to target fine lines and wrinkles. Now मैंने इसकी more than half bottle empty कर दी. अगर आप देख सकते हो यहाँ तक ये empty हो चुका है. Now I have very sensitive skin. I have acne prone skin. कुछ भी प्रोडक्ट्स लगाती हूँ ना तो सबसे पहले मेरा इशू ये रहता है कि मेरे फेस पे ना टेक्सचर आना शुरू हो जाता है, एक्नेज आना स्टार्ट हो जाते हैं. इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. I wasn't able to see any bumps on my face, any texture. तो सेंसिटिव स्किन पे तो ये कोई भी इसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं हुआ. बट नाउ कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं हुआ तो मुझे कुछ भी पॉजिटिव इफेक्ट भी नहीं दिखा. अब ना आई हैव स्टार्टेड गेटिंग सम ऑफ द फाइन लाइन्स अराउंड माई आईज एंड अराउंड माई माउथ एरिया. तो आई वॉन्टेड टू टारगेट दैट एरिया एंड सी कि इसका कुछ इफेक्ट होता है या नहीं. बट आई हैव यूज्ड इट फॉर मे बी 25-30 days. थोड़ा सा भी इफेक्ट दिखना स्टार्ट नहीं हुआ. आई नो 25-30 डेज में ऐसा फुल फ्लेज इफेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन एटलीस्ट कुछ स्टार्टिंग में इफेक्ट दिखना स्टार्ट होता है. लाइक योर स्किन इज लुकिंग टाइटर, स्किन अच्छी दिख रही है, थोड़ा सा ग्लो आ रहा है. फाइन लाइन्स पे एटलीस्ट 5% तो कम करना चाहिए था. लाइक एटलीस्ट इसको लगाते ही तो फाइन लाइन्स थोड़ी सी कम दिखनी चाहिए थी, बट वो नहीं हो रहा. सो आई एम स्टिल गोइंग टू यूज दिस वन. अब है तो मैं इसको छोड़ने तो नहीं वाली हूँ, पूरा यूज करूंगी. बट मुझे कुछ भी इफेक्ट नहीं दिखा. लाइक इवन 1% ऑफ इफेक्ट विद दिस आई हैवंट सीन. तो दिस वन आई वोंट बी रिकमेंडिंग. अब इस ब्रांड के 1-2 और सीरम्स भी हैं. आई एम नॉट श्योर कि वो काम करते हैं या नहीं, बट पर्टिकुलरली दिस प्रोडक्ट हैज़ नॉट वर्कड फॉर मी. अब ये काम नहीं किया तो आई ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई दैट आई थिंक कॉपर पेप्टाइड्स और चार्ज पेप्टाइड्स सम सीरम. आई जस्ट पुट अ फोटो ऑफ सीरम ओवर हियर बाय दिस सॉल्ट लैब्स. वो ब्लू कलर का सीरम आता है. I wanted to try that, but that particular product has niacinamide. And if you have been with me on this channel for long, you would know मुझे niacinamide सूट नहीं करता. मेरे चेहरे पे वाइट बम्प्स दिखने लगते हैं, बहुत ज़्यादा टेक्सचर आ जाता है एंड मेरी स्किन इरिटेट हो जाती है. लाइक इफ इट इज़ 5% ऑफ niacinamide, 10% या किसी भी प्रोडक्ट्स में 1 या 2% ऑफ niacinamide इज देयर, वो प्रोडक्ट मेरे लिए काम नहीं करता. इसलिए मैंने वो कॉपर पेप्टाइड्स वाला सीरम नहीं लिया. I tried this one. This is Salt Labs 120 Hours Hydra Plus Air Whip Face Moisturizer. I don't think it has any peptides. ऐसा कुछ ingredients में लिखा हुआ नहीं है. And niacinamide भी इसमें नहीं है. ऐसा कुछ ingredients में लिखा हुआ नहीं है. Now, it is Air Whip Face Moisturizer. तो इसका जो texture है वो for sure काफ़ी light है. अगर आपकी ऑयली स्किन है आपको ये पसंद आएगा. जब आप इसको लगाते हो तो फेस पे ना एक बहुत हेल्दी सा ग्लो दिखता है. ऐसा लगता है कि आपका फेस ना एकदम से फ्रेश हो गया है. तो दैट इज़ वन थिंग आई लाइक अबाउट दिस वन. बट वो जो ग्लो है ना वो इसको लगाने तक ही टिकता है. उसके बाद अगले दिन जब भी मैं अपना फेस देखती हूँ ना, मेरे फेस पे बम्प्स आने लगते हैं, टेक्सचर आने लगते हैं, जैसा नाइसिनामाइड के साथ होता है. नाउ मैंने ब्रांड को ईमेल सेंड किया है टू नो मे बी इंग्रेडिएंट लिस्ट जो वेबसाइट पे है वो कंप्लीट नहीं है एंड इट हैज़ नाइसिनामाइड दैट इज़ डिस्टर्बिंग माई स्किन. वी डोंट नो, अभी तक मुझे ब्रांड से कोई रिप्लाई नहीं आया है. बट दिस वन हैज़ नॉट बिन वर्किंग गुड फॉर मी. मॉइस्चराइज करता है स्किन को, दैट इज़ ट्रू. ग्लो देता है, दैट इज़ ट्रू. इट इज़ वेरी हाइड्रेटिंग, दैट इज़ ट्रू. आपकी ऑयली स्किन है तो आपकी स्किन को ग्रीजी नहीं बनाएगा, दैट इज़ ट्रू. बट मेरी स्किन पे ये काम नहीं कर रहा है. सो इफ़ यू हैव एक्ने प्रोन सेंसिटिव स्किन, फॉर नाउ यू कैन स्किप दिस वन अप. बिकॉज मुझे आइडिया भी नहीं है कि कौन सा इंग्रेडिएंट है इसमें ऐसा जो मेरी स्किन को सूट नहीं कर रहा. बट आई हैव ऑल्सो गिवन दिस वन टू माई सिस्टर टू ट्राई दिस आउट. शी हैज़ ड्राई स्किन एंड उसके ऊपर ये सही से काम किया है.
तो अगर आपकी ड्राई स्किन है, यू डोंट हैव ऐसा एक्ने या सेंसिटिव स्किन का इशू, तो आप ट्राई कर सकते हो, बट अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हो। अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो इसके साथ चांस मत लो, आई वुड से। ना सॉल्ट लैब्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो सॉल्ट लैब्स का एक प्रोडक्ट जो मुझे काफी पसंद आया है एंड आई वांट टू रिकमेंड इज दिस इज फ्लैश फेशियल। इट इज केमिकल एक्सफोलिएटिंग मास्क. It has 10% of AHA and BHA in here, 1% of Bifida lysate, 15% of PHA and 20% of aloe vera in here. तो ये जेंटल मास्क तो नहीं है. If you are into chemical exfoliation, you will surely like this. अगर आपने वो ऑर्डिनरी का जो रेड मास्क आता था, रेड लिक्विड वाला केमिकल एक्सफोलिएंट आता था, वो ट्राई किया है, या फिर डॉट एंड की का ट्राई किया है, एंड इफ़ यू आर इनटू दोज काइंड ऑफ मास्क, तो आपको ये पसंद आएगा. मैंने काफ़ी टाइम से ना कुछ केमिकल एक्सफोलिएटिंग मास्क ट्राई नहीं किए बिकॉज आई वॉज यूजिंग ट्रेटेनॉइन, बट मैंने काफ़ी टाइम से ट्रेटेनॉइन भी छोड़ रखा था और मेरी स्किन पे ना टेक्सचर आना स्टार्ट हो गया था, एंड आई वॉन्टेड समथिंग सम क्विक फिक्स, एंड द फ्लैश फेशियल वॉज जस्ट परफेक्ट थिंग. नाउ मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, तो आई वुड से इसको लगाने के बाद मुझे कुछ भी ऐसा रेडनेस नहीं दिखा या मेरी स्किन इरिटेट नहीं हुई. माई सिस्टर हैज़ ड्राई स्किन एंड शी हैज़ बिन लविंग दिस वन टू. तो अगर आप कुछ ऐसा केमिकल एक्सफोलिएटिंग मास्क देख रहे हो, यू कैन श्योरली ट्राई दिस वन. इसको ऐसा 5-10 मिनट्स अपने फेस पे लगा के अपना फेस वॉश कर लो. ऐसा लगता है कि एक डीप क्लिनजिंग फेशियल हो गया है. आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा क्लीन लगती है, एकदम स्क्विकी क्लीन काइंड ऑफ लुक आता है. अगर थोड़े से वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स हैं, उसमें भी रिडक्शन होता है. ऑब्वियसली आपको 2 से 3 बार ट्राई करना पड़ेगा. एक ही बार यूसेज में इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन एक यूसेज में आपकी स्किन क्लीन दिखती है. नाउ आई हैव बीन यूजिंग इट सिंस लास्ट आई वुड से 1 मंथ. तो 3 से 4 बार मैंने इसको यूज़ किया है. टेक्सचर में इम्प्रूवमेंट भी दिखी है. मेरे नोज पे थोड़े से ब्लैक हेड्स हो गए थे, वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट दिखी है, एंड माई स्किन इज श्योरली फीलिंग क्लीन. ऐसा लग रहा था कि डेड लेयर जो मेरी स्किन पे काफ़ी टाइम से थी वो रिमूव हो गई है. तो दिस वन इज वर्थ ट्राइंग अगर आप केमिकल एक्सफोलिएटिंग मास्क ट्राई करना चाहते हो तो. द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज दिस हैप्पियर सनस्क्रीन स्प्रे. नाउ हमारे चैनल पे सनस्क्रीन की बात काफ़ी टाइम के बाद हो रही है. अब मुझे ना मेकअप के ऊपर यूज़ करने के लिए कुछ सनस्क्रीन टाइप चाहिए था. अब अगर आपने वो सनस्क्रीन स्टिक्स यूज़ किए हैं तो आपको पता होगा कि अगर आप मेकअप किया हुआ है उसके ऊपर आप वो स्टिक यूज़ करोगे तो स्टिक के ऊपर मेकअप रह जाता है. मेकअप तो डिस्टर्ब होता ही है, प्लस वो स्टिक भी अब क्लीन नहीं है. तो आइडियली आपको उसको क्लियर करना चाहिए और तब रखना चाहिए, एंड दैट इज़ काइंड ऑफ हैसल फॉर मी. उसी की वजह से अगर मुझे मेकअप किया हुआ है और सनस्क्रीन रीअप्लाई करना है ना, मैं उसको हमेशा छोड़ देती थी, मैं नहीं करती थी. बट आई वॉन्टेड टू गेट सन प्रोटेक्शन ऑब्वियसली, इसलिए मैंने ये स्प्रे खरीदा. नाउ आई हैव बिन लाइकिंग दिस स्प्रे. अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये स्प्रे के साथ आपका मेकअप 100% वैसे का वैसा ही रहता है. मेकअप थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है. अब सनस्क्रीन में लिक्विड है, अगर आप स्प्रे कर रहे हो तो लिक्विड आएगा, मेकअप डिस्टर्ब होगा थोड़ा सा. अनटिल एंड अनलेस आपने वो प्रोफेशनल मेकअप करा रखा है तो फिर थोड़े से चांसेस कम है, बट खुद से किया है तो आई थिंक थोड़ा सा मूव होता है. लेकिन आपने अगर ये स्प्रे कर लिया तो आपको अब सन प्रोटेक्शन तो मिल गई. अब उसके ऊपर थोड़ा सा ब्लश का रिटच कर लो, थोड़ा सा पाउडर लगा लो, एंड यू विल बी सॉर्टेड. ऐसा नहीं होगा कि ये आपके बेस को मैसअप कर देगा, इतना नहीं करेगा. बाय द वे, लाइव एप्लीकेशन मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर किया, वहाँ जाके चेक कर सकते हो. इसको स्प्रे करो, थोड़ा सा डैप कर लो, इसके ऊपर मसाज करने का लिखा हुआ है बाय द वे. अब ऑब्वियसली अगर आपके फेस पे मेकअप है तो आप सनस्क्रीन मसाज नहीं कर सकते हो, तो आई जनरली स्प्रे इट एंड थोड़ा सा मैं उसको डैप कर लेती हूँ. और जब सनस्क्रीन प्रॉपरली ड्राई हो जाती है तो ब्लश लगा लो आप थोड़ा सा और पाउडर लगा लो. नाउ यू हैव मेकअप ऑन योर फेस, और सनस्क्रीन से आपको प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा. इसीलिए अगर आप मेकअप के ऊपर सनस्क्रीन रीअप्लाई करने के लिए कुछ देख रहे हो, आई वुड से एक बार ही स्प्रे ट्राई करके देखो. मैं ये नहीं बोल रही कि हैप्पियर की ट्राई करो. आई हैव ट्राइड दिस वन, मुझे ये पसंद आई है तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ. आपने अगर कोई और ट्राई की है स्प्रे और पसंद आ रही है, यू कैन यूज़ दैट. एक मोहा की आती है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, आप वो भी ट्राई कर सकते हो. या बेसिकली आई एम सेइंग दैट सनस्क्रीन स्प्रेज आर better than those sunscreen sticks. That's what I wanted to say. Next, I want to talk about a oil cleanser which is by the Conscious Chemist. This one. Now, इसके बारे में भी मैंने पहले बात की है, लेकिन थोड़ी सी और बात करना चाहती हूँ मैं इसके बारे में because I have been liking this one a lot. Now, I like cleansing balms over cleansing oils because I have oily acne prone skin और काफ़ी सारे cleansing oils ना मेरे acnes को trigger कर देते हैं. Now I have used the one by the
फेस शॉप, वो मुझे काफ़ी पसंद था। आई हैव ऑल्सो यूज दी DHC, लेकिन वो कॉस्टली है। ऑल्दो मैं खरीद सकती हूँ बट स्टिल अगर बजट फ्रेंडली ऑप्शन अवेलेबल है तो क्या हर्ज है। दिस इज द वन दैट आई हैव बीन लविंग एज आई मैंशन। अगर आपकी एक्ने प्रोन सेंसिटिव स्किन है और अगर आप ऑयल क्लेंजर देख रहे हो डबल क्लेंजिंग के लिए, ये काफ़ी अच्छा है। मेकअप ईजिली उतर जाता है। अगर तो बहुत ही ज़्यादा वाटरप्रूफ स्टबन मेकअप है लाइक मस्कारा या फिर आपकी आईलाइनर्स काफ़ी स्टबन है, तो थोड़ा सा ज़्यादा लेके आपको 1 या 2 बार करना पड़ सकता है रब। नाउ रब बाय रबिंग आई डोंट मीन कि आपको ऐसा घिसना पड़ेगा, बहुत ही जेंटल रबिंग से भी वो हट जाता है। लिपस्टिक्स या फिर बेस मेकअप बहुत अच्छे से निकल जाता है। जैसा भी बेस मेकअप आपने यूज़ किया है ना, बहुत इजीली निकल जाता है। मुझे कभी कभी सेकंड टर्न में भी जस्ट आईलाइनर्स के लिए या मस्कारा के लिए ही करनी पड़ती है, अदरवाइज आई एम जस्ट गुड विद 1 राउंड। और उसके बाद मैं किसी जेंटल फेस वॉश से मुंह वॉश कर लेती हूँ। आई हैव बिन लविंग दैट सुगंधा फेस वॉश। बाय द वे आई डोंट नो सुगंधा के बारे में लोग इतनी ज़्यादा बात क्यों नहीं करते हैं, बट दैट फेस वॉश ऑल्सो मैंने अभी वो अपने पास रखा नहीं है, अदरवाइज इस वीडियो में मैं वो भी इंक्लूड करती। बट कमिंग बैक टू दिस ऑयल, अगर आप डबल क्लेंजिंग के लिए कुछ देख रहे हो एंड यू वांट टू ट्राई दी ऑयल, आपको फेस शॉप वाला पसंद था और कुछ बजट में देखना चाहते हो तो ये ट्राई कर सकते हो। फॉर श्योर बहुत अच्छा काम करता है। नेक्स्ट आई वांट टू टॉक अबाउट अ हेयर केयर प्रोडक्ट व्हिच इज बाय द पिलग्रिम। इट्स द रिडेंसिल एंड एनागेन एडवांस्ड हेयर ग्रोथ सीरम विद ग्रीन टी। नाउ इसको मैंने लास्ट नाइका सेल के टाइम पे खरीदा था। आई हैव बीन यूजिंग दैट विश केयर एडवांस हेयर सीरम और विश केयर हेयर ग्रोथ सीरम सिंस क्वाइट सम टाइम नाउ, और वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बट लेट्स एडमिट दैट वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। अराउंड 900 का 30 ml का बॉटल आता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड दिस वन इज आई बिलीव 50 ml फॉर 900। बट सेल पे ऑब्वियसली दोनों के प्राइसेस थोड़े से डिफरेंट रहते हैं। ये मुझे बेटर प्राइस पे मिला था सेल पे। आई वॉन्टेड टू ट्राई इट क्योंकि इसके रिव्यूज़ भी अच्छे थे। नाउ अगर मैं ये दोनों सीरम्स को कंपेयर करूं, आई वुड से जो भी मुझे रिजल्ट्स विश केयर से मिल रहे थे सेम मुझे इसके साथ भी मिल रहे हैं। ओके, सो माई हेयर दे डेफिनेटली फील सॉफ्ट। हेयर फॉल पे थोड़ा सा इफेक्ट फॉर श्योर दिखता है, हेयर क्वालिटी बेटर लगती है और हेयर ग्रोथ कॉन्स्टेंटली आपको दिखता ही रहता है। तो दैट इज वाई आई वॉज यूजिंग दैट विश केयर एंड दैट इज वाई आई वॉन्टेड टू यूज दिस वन। तो रिजल्ट्स वाइज इन दोनों में से कोई भी फर्क नहीं है, बट इसमें ना थोड़ी सी फ्रेग्रेंस है, लाइक इट्स लाइक थोड़ा सा केमिकल सॉर्ट ऑफ फ्रेग्रेंस इसमें आता है। विश केयर में कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है, दैट हैज लाइक आई वुड से 0 फ्रेग्रेंस। इसका भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। इफ़ यू डोंट हैव लाइक वेरी सेंसिटिव नोज यू वोंट इवन नोटिस द स्मेल इन दिस वन। बट टेक्सचर वाइज मुझे विश केयर बेटर लगता है। अगर इसको मैंने 1 या 2 दिन कॉन्टिन्यूसली लगाया है तो 3rd डे मेरे ना हेयर थोड़े से ऑयली दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, जबकि विश केयर पे लाइक इफ आई हैव यूज्ड 4 डेज कॉन्टिन्यूसली उसके बाद मेरे हेयर थोड़े से ग्रीसी दिखना स्टार्ट होते हैं। बट नाउ यू डिसाइड कि सिर्फ फ्रेग्रेंस और ग्रीसी दिखने की वजह से इफ यू वांट टू पे दी हायर प्राइस या फिर यू वांट टू ट्राई दिस वन। रिजल्ट वाइज दोनों बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मुझे विश केयर अच्छे डिस्काउंट पे मिलेगा तो मैं वो ले लूँगी, मुझे ये अच्छे डिस्काउंट पे मिलेगा तो मैं ये चूज़ कर लूँगी, बिकॉज एनी हाउ 3rd या 4th डे मैं हेयर वॉश कर ही लेती हूँ, एंड इफ नॉट वी ऑल्सो हैव द स्लीक वन टू रेस्क्यू, राइट? सो या, this has been working nice, guys. This has been working nice. Alright, so these were all the products that I wanted to talk about that I have been using. Some are good picks and some were flops, but anyways, if you guys like this video, please don't forget to give it a big thumbs up. Please do share this video with your family and friends because your support means a lot to me. And if you haven't done yet, please consider subscribing to my channel, which is Blessed by Daljit, and do click on the bell icon right next to it so that you are notified each and every time I upload a new video. I'm gonna meet you next time. Bye bye.